born. We are born on a particular date, at a particular time, at a particular place. And all this is there because of the past life karma. So I've been taking a series of karma sessions जहां मैंने बताया है कि why we are born at a certain place at a certain time or a certain date. So astrology also talks about that, and numerology also talks about that. So we have a date. I'm born on 3rd June. Why I'm born on 3rd June? Because there is something associated with these numbers. This I have to go through in this lifetime. Now, astrology and numerology में एक छोटा सा फर्क है. Astrology is a more elaborate thing. You get all those answers. When are we going to get married? What will be the profession? Everything. Numerology is a little smaller topic, but it talks about the nature. It talks about, again, profession. It gives hints what type of professions we are going to have, but it is a smaller version of the knowledge we get from astrology. So numerology में हमारे पास हमारा एक नंबर होता है जो हमारी आइडेंटिटी है. Today we will explore each number. So there would be 3 parts of the session. One would be numbers. हर नंबर क्या बोलता है, what each number says. Second part would be name numerology. And the third part would be how the year 2021 would be for every number. Now, numerology का जो major remedy होता है, that comes from the name numerology. आप like I was born on 3rd June. I can't do anything about it. 3rd June 1974. This becomes my identity. अब इसमें अभी I'll tell you there are 2 types of number. One is the driver number, the other one is conductor number. Now driver number को बहुत सारे लोग karmic number बोलते हैं, basic number बोलते हैं. Conductor number को बहुत सारे लोग life path number बोलते हैं, destiny number बोलते हैं. I will teach you अभी. So अगर आपके इन दोनों numbers में synchronization नहीं है, harmony नहीं है, you tend to face difficulties. अब आपको ये पता चल गया, now what to do next? You just can't sit and cry, कि मेरे को ऐसे numbers मिल गए. So उसके लिए name numerology works. वो एक remedy है how we can enhance a particular number हमारे life में. Last तक मैं सारा बताऊंगी. Colors से भी हम enhance कर सकते हैं कोई number की power को. Name numerology से भी कर सकते हैं. So let us first begin with the numbers. Now हर नंबर एक कहानी बोलता है, हर नंबर एक कहानी बोलता है, और हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. Obviously आप उनसे उनकी जन्म पत्री नहीं मांग सकते. You can't ask people that give me your horoscope, I want to understand you. But the moment you come to know the date of the birth, or you know the name of the person, you come to know something about that person. Like if you see me and if you talk to me, and when I tell you I'm a number 3, then you can understand that I am a particular type of a person, जो मैं अभी आपको बताऊंगी how you can assess. So this is important to understand the nature of people. Then how do you know what are good years in your life? So इसका elaborate तो advanced class में होगा, जहां हम ये बताएंगे कि professional education सबके लिए कैसे years निकाले. But काफी चीजें आज आपको पता चलेगी इसमें, how to know that. तो अब जैसे मेरा एक नंबर हो गया, बट डू यू थिंक पूरी जिंदगी में इस नंबर का ही उतार चढ़ाव देखूंगी? नहीं, हर साल डिफरेंट है. जैसे ये ईयर 2020 था, ये 4 नंबर था. Lot of difficulties this number had for all the people all across the globe. Next year is 2021, which is a number on Mercury, which we will talk. तो अब एक तो ये सारे ग्लोब के लिए एक एनर्जी लाएगा, एक हम सबके लिए अलग अलग लाएगा. हम सबका डेट ऑफ बर्थ से भी अलग आएगा, और अगर लास्ट में टाइम बचा तो आई विल टेल यू हाउ वी कैन फाइंड आउट हमारे लिए कैसा पर्सनली होगा. सो लेट अस बिगिन. नाउ वी विल गो ऑन व्हाट ईच नंबर सेज. हर नंबर की एक कहानी है. So that's Basics of Numerology by Dr. Tushar Charan.
So the first number, जो पहला नंबर है, that is number 1. Okay? Yes, सिंगल नंबर को लाना है. अभी आप ऐसे करें, यू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज, देन आज बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें. सो द फर्स्ट नंबर इज नंबर 1 एंड इसका प्लैनेट है सूर्य. सो एज जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, दे कैन अंडरस्टैंड इस नंबर की क्या पावर है. सूर्य, सूर्य इज व्हाट? किंग. तो जो एक नंबर वाले लोग होते हैं, द पीपल हु आर 1 नंबर, दे आर द किंग्स, दे आर द लीडर्स, दे आर द रूलर्स, they are the dominating people, they are the ego wale people, and they are very individualistic. मैं, they are more on मैं कौन हूं. So और जहां भी ये जाते हैं, they want to lead the whole group. They can't sit in the भीड़, you know. राजा कैसा होता है? राजा भीड़ में कभी भी नहीं बैठ सकता, उसको लीड करना होता है. So they are the leaders, they are the authority, they are independent people, confident people, and they have lot of good management skills also. Because एक भीड़ को चलाने के लिए एक लीडर में वो क्वालिटी होनी पड़ती है मैनेज करने के लिए. So इन सारी क्वालिटीज को देखते हुए क्या प्रोफेशन होगा? One can be a CEO of a company, one can be a army journal, या उसका खुद का बिजनेस हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, या मैं कहूँ कोई लेडी अगर हाउसवाइफ है तो शी इज अ लीडर. शी कैन नॉट बी कि घर में पता ही नहीं चल रहा देयर इज दिस लेडी है, ओनली द मैन इज रूलिंग द हाउस. ऐसा नहीं होता. नंबर 1 पीपल रूल. नाउ इनका कंपैटिबिलिटी 1, 2 and 5 and 7 से होता है. 1 is king, 2 is चंद्रमा and रानी. तो राजा रानी साथ में काम करते हैं, but they are not compatible with number 8. Number 2 is the number of moon. चंद्रमा का नंबर है. अब जो लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है उनको पता है मून कैसा होता है. वैक्सिंग, वीनिंग, घटता बढ़ता रहता है. वैसे ही ये सारे लोग होते हैं. 2 नंबर वाले जितने लोग होते हैं, they are very emotional people, and but then there is one more better quality. They are the queens, they are the mothers. So they are very caring people. जो person emotional है वही care कर सकता है किसी की. So these people have these motherly instinct. They are very caring, they are nurturers, and they are very positive people. They are creative people. उनमें क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है. देन लॉट ऑफ दे आर इंट्यूटिव पीपल. इनमें बहुत सारे इंट्यूशन वाली पावर होती है, इमेजिनेशन वाली पावर होती है. एंड सिंस दे आर इमोशनल पीपल, थोड़े से अटेंशन सीकर्स होते हैं. थोड़ा सा उनको प्यार ज्यादा चाहिए होता है, तो प्यार पाने के लिए वो कुछ भी करते हैं. सो दीज पीपल आर दे नीड लॉट ऑफ पैम्परिंग ऑल्सो. सो इनको थोड़ा सा इनमें लो सेल्फ एस्टीम होता है इसी वजह से, बिकॉज दे ऑलवेज कीप फीलिंग, जैसे नंबर 1 है उसको कुछ भी मतलब नहीं है, वो सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सफिशिएंट है. नंबर 2 ऑलवेज नीड, रानी को हमेशा राजा चाहिए होता है साथ में. तो 2 नंबर वाले जितने लोग हैं, अगर आपके घर में भी है, प्लीज गिव देम दैट अफेक्शन, पैम्परिंग, बिकॉज वो लोग मूडी भी होते हैं. सो डोंट गेट इरिटेटेड बाय देम. दे आर थोड़ा सा मूडी क्योंकि वो इमोशनल है. और जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, उनका मूड प्रैंक्स भी चलते रहते हैं. कभी वो बहुत खुश है, कभी वो बहुत दुखी है, कभी वो डिप्रेस्ड है, कभी वो हैप्पी है. सो बी नाइस टू बी जेंटल टू दीज पीपल एंड गिव देम लॉट ऑफ लव. जब आप उनको प्यार देंगे, उनका बेस्ट बाहर आएगा. एंड प्रोफेशन, एज they are loving people, so they become best of the doctors, best of the nurses, caregivers, even hospitality industry में भी वो अच्छे काम कर सकते हैं. और एक वो writers अच्छे होते हैं, because they have a very good expression वाली power. So writer क्या होता है? लिख के अपना भाव बताने वाला, expressing through pen. So these people are very good writers. Even they become very good counselors. So public speakers भी होते हैं, because again they can express themselves. So इनके compatible numbers है 1, 4 and 8. पानी यहाँ से ले लो.
सो इनका कंपैटिबल नंबर 1, 4 एंड 8 है, एंड इनका नॉट सो कंपैटिबल नंबर 3 है. अगेन वी विल टॉक अबाउट दिस थोड़ा डिटेल में बाद में. देन लेट अस मूव टू नंबर 3. नाउ नंबर 3 जो कि मेरा नंबर है, दिस इज द नंबर ऑफ जुपिटर. सो ये नंबर आपको, दिस नंबर इज नंबर ऑफ विजडम, एंड ये नंबर आपको मिलता है पास्ट लाइफ गुड कर्मा से. विजडम क्या होती है? विजडम इनबॉर्न ट्रेट होता है, एक होता है नॉलेज जो आप गेन करते हो पढ़ के ऐसा, और एक होता है विजडम, यू आर अ वाइज पर्सन बाय बर्थ. सो नंबर 3 people are very wise people, full of wisdom. Then they have a lot of communication skills. बहुत अच्छा कम्युनिकेशन पावर होता है, लोगों को समझने का, लोगों को समझाने का. Then very good decision makers. All the qualities of Jupiter are there. So Jupiter की एक और क्वालिटी क्या होती है? एक्सपेंशन. हर चीज को वो बड़ा कर सकते हैं. So they can go into finance का फील्ड, they can expand ना, तो वो फाइनेंस फील्ड में भी जा सकते हैं. देन ये जो लोग होते हैं, दे आर लाइफ ऑफ द पार्टी, एंटरटेनर्स, बिकॉज वो इतने जोवियल होते हैं, दे आर हैप्पी पीपल. सो आप जब हैप्पी होंगे, that is how you will give happiness. So these people are life of a party, entertainers होते हैं, creating, and they are very confident people also, and good decision makers also. So इनका प्रोफेशन क्या होगा? एज इन सारी क्वालिटीज से देखें तो प्रोफेसर्स, टीचर्स, काउंसलर्स, बैंकर्स. अब एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट एक चीज यहाँ आ गई कि ये लोग बैंकर्स भी है, फाइनेंस फील्ड में भी है, स्टॉक ब्रोकर्स भी हो सकते हैं. सो देर आर एक ग्रुप्स होता है, एक होता है 157 का ग्रुप, एक होता है 248 का ग्रुप, एक होता है 3, 6 and 9 का ग्रुप. इन सब की अलग अलग क्वालिटीज होती है. सो 248 फेमिनिन साइन, मोर इमोशनल पीपल, राइटर्स, वेल्थ वाला इनका एक एजेंडा होता है, दे आर वेल्दी पीपल, दे हैव वेल्थ. 157 क्या होंगे? कमांडर्स, लीडर्स, इंटेलिजेंट, वैसे. अब 369 क्या हो गए? अगेन दीज पीपल आर wise people, knowledge वाले people, energy वाले people, loving people. but आगे चल के हम और बात करेंगे. so thank you Asta for sharing these combinations. so there is 369 का भी एक combination है. so these people don't get 3 number is not compatible with the number 2. ये एक डिफरेंट चीज है न्यूमरोलॉजी की. एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर और मून का बहुत अच्छा योग बनता है, गज केसरी, बट न्यूमरोलॉजी में दे डोंट गेट अलोंग. देन कम्स द नंबर 4. नाउ नंबर 4 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर. 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर है. इट्स अ नंबर ऑफ राहु, दैट इज यूरेनस. नाउ इसको अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली ले तो ये नंबर क्या हो गया? इल्यूजन का नंबर हो गया, अनसर्टेनिटी का नंबर हो गया. बट न्यूमरोलॉजी में ये डिफरेंट है. न्यूमरोलॉजी में इस नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ स्टेबिलिटी. ये एक नंबर है जो लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करता है. बट नंबर 4 इंडिकेट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ. बट वो सारों से आपको बहुत सारा गेन मिलता है, और ये इसीलिए इस नंबर को बोलते हैं नंबर फुल ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स. तो अगर राहु केतु की स्टोरी पता है, राहु कैसे थे? राहु बहुत सारी चीजें पाना चाहते थे. सो ये जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं, दे आर ऑल्सो वॉन्टिंग टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम नंबर 8 बिकॉज दीज पीपल आर शाय पीपल. दे वॉन्ट टू बी अब छोटा सा सर्कल में और शाय होते हैं. नंबर 8 पीपल भी बहुत वेल्थ के पीछे भागते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट, बट दे आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. दीज पीपल आर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट. सो दैट इज हाउ दीज पीपल कैन बिकम वेरी गुड रिसर्चर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स. व्हाई मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स? बिकॉज ये नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है.
तो ये लोगों को मैनेज करने वाली इनमें काफी अच्छी कैपेबिलिटी होती है. देन दे आर मैजिशियंस ऑल्सो, दे कैन क्रिएट मैजिक ऑल्सो. गो गेटर्स होते ही हैं, दे नो हाउ टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट. यू नो, ये भी हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंस रहता है. कई लोग मेहनत कर पाते, कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग बहुत जल्दी विड्रॉ कर जाते हैं. सो दीज पीपल आर रिसर्चर्स, प्लानर्स. राहु ने क्या करा था? स्कीम्स लड़ाई थी, स्कीमर्स. सो दीज आर द क्वालिटीज. अगेन they are compatible with 248. They are not compatible with number 9. इनकी एनर्जी 9 नंबर के साथ मैच नहीं होती. I hope I'm clear to everybody. Now comes number 5, जो कि next year का नंबर है. It is, thank you, it is the number of Mercury. बुध का नंबर है. So अब बुध को अगर एस्ट्रोलॉजी से लें तो बुध is what? Communication, media. But in numerology it's slightly different. बुध एक ऐसा नंबर, this 5 नंबर बीच में आता है, 1 to 9 के बिल्कुल बीच में आता है. So it is a balanced number. बाकी सारे नंबर एक्सट्रीम्स है, जैसे 2 नंबर एक्सट्रीम इमोशनल, 1 नंबर एक्सट्रीम egoistic, power, dominating, 8 नंबर lot of delays, hardships, wealth. बट 5 is one नंबर जो बैलेंस क्रिएट करता है, जो भी काफी सेल्फ सफिशिएंट नंबर है. एंड दीज पीपल आर हैप्पी गो लकी पीपल. एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट यहाँ पे आता है न्यूमरोलॉजी में इसका प्रिडिक्शन. ये हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं. दे आर वेरी फ्री स्पिरिटेड पीपल and they are here for experiences of life. So लोगों को भी help करते हैं to achieve experience in life, and they are also here to experience everything in life. Experience relationship, experience wealth, any kind of experience. They are ready for that. So ये लोग वैसे होते हैं. अगर हम astrology wise लें या Mercury wise लें तो they are money minded people, they are business oriented people, very calculative people. अगेन मैनेजमेंट स्किल्स इनमें भी होती है बिकॉज बैलेंस वाले लोग होते हैं. सो दे कैन बिकम वेरी गुड अकाउंटेंट्स, इन्वेस्टर्स, कंसल्टेंट्स, पीआर एजेंट्स, मार्केटिंग एजेंट्स, वेडिंग प्लानर्स ऑल्सो, क्योंकि दे आर हियर फॉर एक्सपीरियंस. लोगों को भी एक्सपीरियंस करना सिखाते हैं ये लोग. लेट मी सी, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है चैट में. हाँ, ये जो हम नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों चीज हमारी लाइफ में बताएंगे, हमारा ड्राइवर, हमारा कंडक्टर. अभी बाद में आपको बताऊंगी हाउ यू कैन पुट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. सो नाउ द नंबर 6. नाउ नंबर 6 इज द प्लैनेट इज वीनस, शुक्र है. तो अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लें तो ये एक लग्जूरियस नंबर है. बट इन न्यूमरोलॉजी इट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट थिंग. ये एक ऐसा नंबर है जो रिलेशनशिप्स का नंबर है. वीनस वैसे भी रिलेशनशिप्स का होता है, शादी के टाइम हम वीनस देखते हैं. सो दीज पीपल आर रिलेशनशिप वाले लोग. दे आर पीपल हु आर वेरी लविंग पीपल. दे वांट टू क्रिएट और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट खुद के घर में. सो दे कैन बी वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर. घर को बहुत ब्यूटिफाई करने वाले लोग होते हैं, या घर से रिलेटेड कुछ भी. सो दे कैन गो इनटू अ फूड इंडस्ट्री, क्योंकि घर में खाना बनता है, तो वो खाना बनाना भी हो सकता है, घर को सजाना भी हो सकता है, परिवार के लोगों को कॉर्डियल हार्मोनी क्रिएट करना, ये भी वो लोग करते हैं. तो इन लोगों का न्यूमरोलॉजी वाइज दीज पीपल आर रिलेशनशिप वाले लोग, प्यार वाले लोग. अगर एस्ट्रोलॉजी वाइज ले तो ये एक लग्जरी नंबर है. दीज पीपल आर वेरी मच इनटू ब्यूटी. दे आर वेरी अट्रैक्टिव पीपल. दे आर चार्मर्स और सुंदरता के पुजारी टाइप लोग. तो रिश्तों के पुजारी, सुंदरता के पुजारी. सो प्रोफेशन क्या होगा इनका? आर्ट रिलेटेड प्रोफेशन होगा. दे कैन बी आर्टिस्ट, they can go into jewelry, cosmetics, actors, painters, dancers, music, film industry, designing, chahe interior designing, chahe fashion designing. So again, they are compatible with 248 and they are not compatible with number 3.
देन कम्स द नंबर 7. नंबर 7 क्या है? केतु का नंबर है. इट इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर. सो एज वी नो, नंबर 1 तो क्या थे? लीडर्स. नंबर 7 इंट्रोवर्ट पीपल. दे आर सेल्फ एनालाइजिंग पीपल, अंदर खुद में झांकने वाले लोग. So they can be very good researchers, they can be astrologers, occult sciences को believe करने वाले लोग हो सकते हैं, and they are very good observers. क्योंकि अगर ये पार्टी में जाएंगे तो ये वहां पे ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट आर पीपल डूइंग, व्हाट आर दे थिंकिंग. खुद की लाइफ को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, खुद के नेचर को. केतु क्या है? केतु रिसर्च, हेडलेस प्लैनेट है, यू नो. सो वो, उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास inherent qualities है to sense things, to understand things. So these people are very deep thinkers and they love to live in isolation. उनको ज्यादा पार्टी और इसमें जाना नहीं पसंद है. They want to be in a very close group, या अपने आप में मस्त मगन लोग. अब they are very compatible with quite many numbers like 1, 2, 4, 16, 25. They are not compatible with their own number. क्योंकि केतु से केतु का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. 7 का 7, दिस इज द ओनली नंबर जो ना खुद के नंबर के साथ कंपैटिबल नहीं है, बिकॉज दे आर यू नो आइसोलेटर्स, खुद के अंदर झांकने वाले लोग. तो वो दूसरे को क्या हेल्प करेंगे? दे कैन नॉट हेल्प द सेम केतु पर्सन. प्रोबेबली दे कैन हेल्प द 1 पर्सन, बिकॉज 1 में वो एनर्जी है, 2 में खुद में वो एनर्जी है, बट 7 खुद लोनर, ये भी लोनर. सो दे डोंट गेट अलॉन्ग विद नंबर 7. They are also very emotional, very committed people, because उनमें understanding power बहुत अच्छी होती है. Then comes number 8. अब 8 क्या हो गया? सैटर्न का नंबर हो गया, शनि का नंबर. तो जैसे ही शनि वर्ड आता है हमें क्या लगता है? बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स. तो ये तो है एस्ट्रोलॉजी की बात, बट न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? न्यूमरोलॉजी में गुड न्यूज. नंबर 8 इज, पहला तो अगर इसको उल्टा करे तो इन्फिनिटी का साइन बनता है. देन नंबर 8 इज अ वेल्थ का नंबर, मनी का नंबर. अगर जिनने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है वो समझ सकते हैं कि जो 8 नंबर होता है, 8th हाउस होता है, वो हमारे धन के घर को भी देखता है. सो ये वेल्थ का. और शनि को ही हम पकड़े तो हमारे ज्योतिष में 10th और 11th हाउस का कारक है कालपुरुष कुंडली में. तो 11th क्या है? विश फुलफिलमेंट, गेन्स. 10th क्या है? कर्मा. सो 8 नंबर मेनली नंबर ऑफ कर्मा भी है, बट इट्स वेल्थ नंबर, मनी नंबर. ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर पाते हैं. ये लोग लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, वो नंबर 8 है, आई थिंक सो. So too flashy, you know, big cars, big industry, big business, big things they want to do. Again, इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं, but they know how to deal with them. अपना सारा एफर्ट सब करके they become successful in life. क्योंकि ये डिसिप्लिन का नंबर है, ये मॉरलिटी का नंबर है, ये बाउंड्रीज का नंबर है. तो ये लोगों को पता होता है इनको क्या करना है लाइफ में. So 4 number is a number of focus, because they are shy people. These people are in the public because they are big industrialists also, and they can be very good politicians. Shani politics का भी कारक है. Administrators, government officials, then investors and bankers and real estate वाला भी हो सकता है. Now compatibility इनकी भी 2, 4, 8 से है. They are not compatible with number 1 and number 7. Then comes the number 9. Number 9 is, the planet is Mars. मंगल का नंबर है. So मंगल is what? Energy. But aggression, ये सब पार्ट तो हो गया एस्ट्रोलॉजी का. बट अगर न्यूमरोलॉजी में ले तो 9 नंबर एक डिफरेंट टैंजेंट पे होता है. These people are compassionate people, loving people, caring people. They are here to give love, help people, help them to grow. ये एक अलग चीज है. न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 का ये वाली होती है. सो दीज पीपल आर बहुत ज्यादा चैरिटी में बिलीव करने वाले होते हैं. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले लोग होते हैं ये लोग. सो दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी कंपैशनेट, वेरी लविंग, केयरिंग, टफ.
आपको टफ भी होना पड़ता है काम करने के लिए। सो इनकी सबसे ज्यादा कंपैटिबिलिटी नंबर 1 के साथ होती है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 इज द किंग एंड नंबर 9 इज द कमांडर इन चीफ। तो राजा आदेश देता है और ये कमांडर इन चीफ सारा दुनिया में चीजें ठीक रखता है, सबको संभाल के रखता है। सेनापति का क्या काम होता है? गार्ड करता है, राजा को भी प्रजा को भी। सो यही 9 नंबर की खासियत है। ये लोग बड़े ही अच्छे लोग होते हैं इन द वे कि दे आर हियर टू हेल्प पीपल। अगेन दे डोंट गेट अलोंग विद 2 and 4 इमोशनल। तो अब आप देखें एस्ट्रोलॉजी में मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी योग बनता है, बट हियर इट्स डिफरेंट, हियर एनिमी है ये। सो अगेन हम ये सारी चीजों की बात में भी एडवांस क्लास में और अच्छे से करेंगे कि क्या है। बट 9 नंबर पीपल कैन बिकम बेस्ट होस्ट। इनके घर चले जाओ, बहुत आपको प्यार से केयर करेंगे, आपका बहुत कुछ अच्छे से ध्यान रखेंगे ये लोग। एंड दे आर बेस्ट डॉक्टर्स because Mars is the number of medicine, and as you know मंगल की वजह से ये डॉक्टर्स बनते हैं। देन माइनिंग एंड रियल एस्टेट, साइकोलॉजिस्ट, होटल इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि मैनेजर्स अच्छे होते हैं। देन आर्मी, पुलिस, दैट इज बिकॉज ऑफ मार्स एनर्जी। So these were the main primary numbers. Okay, now if anybody has a question so far, please tell me. Please type in the group. Yeah, 7 is not compatible with number 7. So ये तो हो गए हमारे बेसिक नंबर 1 to 9। अब 10 से 31 आ जाते हैं हमारे कंपाउंड नंबर्स। ओके, वो 2 नंबर। तो वैसे न्यूमरोलॉजी में एक चीज चलती है कि सिंगल नंबर से बेटर कंपाउंड नंबर है, क्योंकि सिंगल नंबर को बोलते हैं कि एक टांग पे खड़ा है, कंपाउंड नंबर 2 टांगे। बट सबकी अलग अलग है। कई जगह ये कंपाउंड नंबर्स एक दूसरे के दुश्मन भी होके पावर कम कर देते हैं। majority जगह they are helping each other. So we will talk about the rest of the numbers. Meanwhile maybe वो मैं आपको लिख के बताऊंगी। तो maybe let us first do कि कौन से friendly numbers है, कौन से not so friendly numbers है। हाँ, एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देर आर 3 नंबर्स जिनको बोलते हैं मास्टर नंबर्स। सो 1 is 11, 22, 33 और एक और होता है 44। वो हार्डशिप्स का नंबर है और ये तीनों लकी नंबर्स है। 11 नंबर इज वेरी लकी, 22 अलग तरह का नंबर है, 33 अलग है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मास्टर नंबर्स, दे आर स्पिरिचुअल नंबर्स। तो जब भी आपके टोटल करके कोई भी चीज, चाहे नेम नंबर को आप कैलकुलेट करके 11 आता है तो उसको हम 2 में नहीं करेंगे, उसको हम 11 ही लेंगे। अगर आपका 22 आता है तो हम उसको भी 22 ही रखेंगे, हम उसको 4 में नहीं कन्वर्ट करेंगे। सेम वे 33। सो अगेन मे बी इन एडवांस क्लास वी टॉक मोर अबाउट इट। राइट नाउ हमारे जानने के लिए यही है कि ये बहुत अच्छे नंबर होते हैं। 11 आपने देखा होगा, बहुत ही बढ़िया टाइम होता है टू ब्लेस योर थिंग्स एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर, मैनिफेस्टिंग एनर्जी होती है उस समय। सो अब 11 नंबर के पास अगर वैसे देखें तो ये क्या हो गया, 1 and 1, 2 सूर्य, या 1 + 1 2 नंबर हो गया। देन इसको ये 7 नंबर केतु की भी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्पिरिचुअल नंबर। सो जो 11 नंबर के लोग होते हैं, दे रीच ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल हाई इन दिस लाइफ टाइम। ओके, देन 22 भी, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, 4 राहु है विच इज अगेन अ स्पिरिचुअल नंबर। 8 है सैटर्न इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल नंबर। But because 4 and 8, remember, they are wealth and money wale numbers, so they accomplish big things in life. So 11 number wale kya karenge, spiritually high honge। 22 wale, they will accomplish big things in life। Now 33 ka kya hoga, they have energy of 6 and 9 and they are very loving people। देखो 3 क्या है, कम्युनिकेशन वाला नंबर है, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। So they work for NGOs, they work for public. Then comes the 44.
ये एक्सट्रीम पैशनेट पीपल होते हैं बिकॉज इनमें राहु की डबल एनर्जी है 4 and 4. बट हम जब बाद में बात करेंगे आगे चल के इन द एडवांस क्लास, 44 इज नॉट अ लकी नंबर, बट दे आर एक्सट्रीम पैशनेट नंबर. सो दीज वर मास्टर नंबर्स. तो जिनके भी कहीं भी ये नंबर्स आ रहे हो कैलकुलेशन में, तो इसको हम लास्ट में उस पे नहीं ले जाएंगे 6 या उस पे. ठीक है, एम आई क्लियर नाउ? अच्छा, ये नेम, ये भी आप लोग पिक्चर ले लें because we will come later on this topic. So name numerology के लिए हम दो चार्ट्स को फॉलो करते हैं. एक होता है पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, एक होता है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी. मोस्ट पॉपुलर एंड विच आई फॉलो इज शेल्डियन न्यूमरोलॉजी. सो हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है यहाँ पे, जिससे हम नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे. बट मे बी वी कैन कम लेटर टू दिस. अभी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है. So numbers was our numbers, okay? Now I will tell you कि जो compound numbers हैं उनकी क्या power है. Is it interesting for all of you? Yeah. Okay, thank you. So now let us come to the, yes Varsha, unmute yourself and ask what do you want to say. वर्षा, आपके पास कोई क्वेश्चन था? चलो नहीं तो हम लास्ट में लेंगे क्वेश्चंस. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. सो लेट अस कम. या सो जो नंबर 1 था उसके क्या नंबर्स हो गए? 1, then 19, then 28, 10. ओके, ये नंबर्स है नंबर 1 के. सो अगर इन सबको हम जब टोटल करते हैं नंबर 1 ही आता है, तो ऑफ कोर्स ये इनके लिए यूजफुल ही रहेगा. बट नाउ इफ वी ब्रेक डाउन, तो 1 + 0, तो 0 का क्या होता है? व्हाट डज 0 डू टू आवर नंबर्स? 0 डाइल्यूट कर देता है एनर्जी को. सो जैसे नंबर 10 है, उसमें 0 आने से उन्होंने थोड़ी सी सूर्य की पावर को कम कर दी एज टू अदर 3 नंबर्स. देन 1 + 9. अब 1 क्या नंबर? 1 क्या है? सन है, और 9 है मार्स. सो एज वी नो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, सन एंड मार्स. सो इस नंबर की बहुत अच्छी पावर हो गई. ठीक है. देन 2 + 8, दैट इज मून प्लस सैटर्न. अब ये दोनों फ्रेंड्स नहीं है, सो ये नंबर की उतनी अच्छी पावर नहीं. अब कंपाउंड नंबर्स को आप समझेंगे तो कैसे समझेंगे? जो 19 नंबर का पर्सन है उसमें सूर्य की एनर्जी है, उसमें मंगल की भी एनर्जी है, तो दैट पर्सन इज विथ लॉट ऑफ एनर्जी. सो अगर हम इन नंबर्स को रेट करें कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले 19 आ जाता है, फिर 1 आता है, फिर 10 आता है, और फिर 28 आता है. 28 लास्ट में क्यों आया? क्योंकि वो दो अपोजिंग एनर्जीज हो गई उसमें, मून एंड सैटर्न. मून ने उसको बहुत इमोशनल बना दिया और शनि ने उसके बहुत हार्डशिप ला दिए. सो दैट इज हाउ. एम आई क्लियर ऑन दिस? ऐसे ही हम सारे नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं. तो वो जो टेबल्स मैंने अभी आपको दी थी, दैट इज फॉर दिस ओनली. सो 2 के क्या नंबर्स हो गए? 2, 11, देन वेट आई हैव टू ओपन, इतना मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से. Yeah, 20 is there, and 20 and 29.
अगर 2 को अकेला लें तो वो एक चंद्रमा का नंबर है, बट 11 इंटरेस्टिंग नंबर है. वाई? 1 प्लस 1, सन प्लस सन. इस पर्सन के पास डबल एनर्जी है सूर्य की. इसीलिए 11 नंबर वाले को कभी भी अपना प्लस करके ना 2 पे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि 2 पे लाने पे क्या हो गया, आपके पास मून की एनर्जी आ गई. अदरवाइज आपके पास 2 सूर्य की एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी है. सन इज लाइक लॉट ऑफ एनर्जी. इसलिए 11 नंबर बेस्ट होता है इस वाली सीरीज में. देन अगेन 20 भी ठीक हो सकता है, क्योंकि उसने भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो गई एनर्जी. Then comes the number 2 and then comes the number 29. अब 29 क्या हो गया? Moon plus Mars. So they are not getting along. So this is how it works. Now comes the number 3. Now number 3 बड़ा interesting है, combination होता है उसमें. Let us understand. So number 3 के क्या numbers हो गए? 3, 12, 21 and 30. So now 12 और 21 दो numbers, दोनों 1 और 2 से बने. तो अब ऑफकोर्स 3 तो जुपिटर ही हो गया. 12 में क्या एनर्जीज आ गई? 1 प्लस 2, दैट इज सूर्य प्लस मून. एंड 21 में क्या आ गया? मून प्लस सन. कैन एनीबडी टेल मी विच इज द बेटर नंबर आउट ऑफ द टू? एंड 30 थोड़ा डाइल्यूटेड. 12. यस, वेरी गुड. हमको ये देखना है कि जो पहला कंपाउंड नंबर्स में हमें क्या देखना है कि जो पहला नंबर है वो क्या है, उसमें क्या पावर है. तो यहाँ पे सूर्य की एनर्जी उसके पास पहले है, फिर उसके साथ चंद्रमा है. इट वुड बी द बेस्ट नंबर इज 12, देन कम्स 3, देन कम्स 21 एंड लास्ट है 30 इस वाली सीरीज में. Now the next number comes 4. So 4 के क्या हो गए? 4, 13, 22 and 31. अब अंडरस्टैंड वन थिंग, हम 4 तो राहु का ही नंबर हो गया. अब 13 को हम ले. 13 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर. 13 को सब लोग खराब नंबर मानते हैं, है ना. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आ गया? सन प्लस जुपिटर. ये एक अच्छा नंबर हो गया. नंबर्स क्या है? नंबर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं. हमारे को ग्लास आधा भरा, ग्लास आधा खाली. यू कैन क्राई कि मेरा आधा ग्लास खाली है, मुझे आधा ही मिला है. या आप खुश हो सकते हो कि मेरे पास आधा ग्लास भरा हुआ तो पानी है. 13 के साथ यही फिलॉसफी लागू होती है. अगर हम देखें हिंदू माइथोलॉजी में त्रयोदशी, धनतेरस, ये अच्छी तिथियां मानी जाती है. तो 13 नंबर एक अच्छा नंबर माना जाएगा, क्योंकि सूर्य और जुपिटर की उसमें एनर्जी है. अगेन इन द एडवांस क्लास वी विल टॉक कि क्यों इसको अच्छा नंबर नहीं मानते. बट अगर बाय द वे आप में से कोई भी 13 नंबर का पर्सन है, आई वुड सजेस्ट फोकस कि आपके पास सूर्य भी है, आपके पास जुपिटर भी है. सो डोंट थिंक कि मेरा अनलकी नंबर हो गया. ओके. नाउ 31 को देखें तो इसमें पहले जुपिटर आ रहा है, फिर सूर्य आ रहा है. क्या कोई बता सकता है बेटर नंबर कौन सा है 13 और 31 में से? 31. यस, वेरी गुड, थैंक यू. व्हाई? बिकॉज जुपिटर की एनर्जी पहले आ गई इसमें. जुपिटर क्या? एक्सपेंशन है. हर चीज को वो बढ़ाता है, ग्रोथ देता है, प्रोस्पेरिटी देता है. अगर इस वाली नंबर्स को हम ले तो 31 सबसे पहले आएगा, फिर 4, फिर 13 एंड 22 सबसे, 22 ही था ना, 22 सबसे लास्ट में आ गया, बिकॉज इसमें 2 मून की एनर्जी दी. ये ओवर इमोशनल होंगे 22 वाले. या सुपर इमोशनल है ना. या. अगेन म्यूट योरसेल्फ गाइस. ये बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हो गए. इसलिए इसको हमने सबसे लास्ट में रखा है. Now comes the number 5.
number 5. A 5, 14 and 23. Now let us understand. 5 Mercury का number है. 1 plus 4 क्या हो गया? Sun plus Rahu. 2 plus 3 क्या हो गया? Moon plus Jupiter. तो इसमें तो सबसे बेस्ट 5 ही रहा, because 5 खुद में बहुत पावर है. Then what number will come next? 23. 23. Thank you. And then अब 14 की भी एक मिस्ट्री है, जो भी अगेन एडवांस क्लास में हम समझेंगे, इसलिए हमने इसको पीछे डाला है. ओके. सो ये जो आपको सीक्वेंस क्यों मैं बता रही हूँ, जब आप नेम न्यूमरोलॉजी करोगे ना, तब ये सीक्वेंस आपके बहुत काम आएगी कि कौन से नंबर को हम प्रेफरेंस दें. सो आई एम क्विकली गोइंग ऑन टू दीज. मे बी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप एडवांस क्लास ज्वाइन करना, तो उसमें हम और भी धीरे धीरे और खूब सारी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे. आज का हमारा मेन एजेंडा क्या है कि हर आदमी समझ जाए क्या लाइफ में करना है नंबर्स के साथ. ओके. सो 6 इज वीनस. सो 1 plus 5 क्या हो गया? सन प्लस मर्करी. 2 plus 4 क्या हो गया? ओके. 2 plus 4 हो गया मून प्लस राहु. सो अब इसमें क्या नंबर हम सबसे ज्यादा पहले ले लें? सो इन दिस वी कैन चूज कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे हम पहले 15 ले लें और चाहे हम पहले 6 ले लें. 2 और 4 तो पीछे ही जाएगा, 24 तो पीछे ही जाएगा. ठीक है. देन कम्स द नंबर, इधर ही लिख देती हूं मैं, यहाँ पे. Now comes the number 7. So 7 का क्या हो गया? Thank you Asta for repeating these. 7 is 7, 16 and 25. So 16 क्या हो गया? 1 plus 6, that is Surya plus Venus, जो friends नहीं है, I think. And 2 plus 5 is Moon plus Mercury. So इसमें 7 number ही पहले important हो गया. Okay? Because बाकी numbers में ज्यादा friendship नहीं है. Then comes number 8. So you can just go and see those charts and understand कि कौन सा number friendly है, कौन सा दुश्मन है, and आप easily अपना date of birth. Sorry, can you repeat the priority numbers for 7? So I haven't given the उसका, because 1 and 6 भी enemy है और 2 and 4 भी है, तो 7 में 7 ही better है. Now इसमें हम ले 1 plus 7 क्या हो गया? सन प्लस केतु. D26. 26, sorry. Thank you. Moon plus Venus. So in this, again कौन सा नंबर हम पहले प्रायोरिटी लें? Moon plus Venus. 26 भी एक अच्छा नंबर है, और 8 भी, and then 17. Okay. Now comes the number 9. So are you guys understanding कैसे numbers काम कर रहे हैं, कैसे हर जो, जैसे कोई पर्सन 8 तारीख को पैदा हुआ है, कोई 17 तारीख को हुआ है, तो उन दोनों में पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग होंगे. Why? Because they will have the energies of different planets. जैसे 9 नंबर है, 9 के क्या होगा? 9, 18, 27. So 18 क्या हो गया? सन प्लस सैटर्न. ये सबसे गड़बड़ हो गया, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के दुश्मन है. 2 plus 7 क्या हो गया? मून प्लस केतु, तो ओकेश है. तो अगेन 9 में भी हम 9 को ही लेंगे, फिर 27, फिर 18. ओके. So this was about the numbers. Now we will